Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you? Hope you are fine by the grace of God Almighty and taking your video classes regularly. Now girls, what have we done in our previous class? Do you remember that? Yes, we have completed lesson number 5 of text. It was about humanism. We did our question and answers and then we completed our sentences. Hope you have completed that work in your notebooks. But today we have to do our grammar work and I hope you have your grammar books with you. Now on page number 45 we have question tags and short replies. First of all we will do question tags. क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताइए क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपको मालूम है इन आवर कन्वर्सेशन वी यूजुअली यूज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, आर यू हैप्पी, आर यू हंग्री, एंड वी नॉर्मली आस्क क्वेश्चंस व्हाइल वी मीट डिफरेंट एंड न्यू पीपल. ऑलराइट, so for better understanding of this we shall turn towards our board. Let's see what we have on our board. Question tags are the short questions added to statements for confirmation. Here you can see the definition. Question tags क्या होते हैं? They are the short questions added to the statements for confirmation. कोई भी छोटा क्वेश्चन जो आप किसी भी स्टेटमेंट के आगे confirmation के लिए लगाते हैं, हम उनको question tags कहते हैं. अब the question arises, why is the need of question tags? हम question tags को इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इनको इस्तेमाल इसलिए करते हैं बेटा कि if you want someone to agree to you, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात को अग्री करे, तो आप उस वक्त क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं. या if you want confirmation or you want to emphasize your point of view, then you make short question tags. Alright, अब आप देखिए मेरे साथ एक दफ़ा फिर इसकी डेफिनेशन को दोबारा से पढ़िए. Question tags are the short questions added to the statements for confirmation. Alright, समझ में आया बच्चों? अब इसकी पहली एग्जाम्पल देखिए. Sarah is a nice girl, isn't she? अब आप देख रहे हैं Sarah is a nice girl is a statement और इसके आगे ये जो short question है isn't she, this is called question tag. हम इसको question tag कहते हैं. ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है? What are the rules? Believe me girls, the rules are very simple and they are very interesting and they are very simple and easy to learn. So for this there are few points that you should remember. Now let's see what those points are. When you make question tags, only pronouns are used. What? Only pronouns are used as a subject in question tag. Never a noun. इसमें noun कभी भी इस्तेमाल नहीं होता. Now move to our example again. Sarah is a nice girl, isn't she? अब मैंने यहाँ पर आपको isn't she बताया. She का pronoun मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया. मैंने इसको ये नहीं कहा कि Sarah is a nice girl, isn't Sarah? ठीक है, यहाँ पर आपने क्योंकि Sarah third person pronoun है, इसलिए आपने इसके लिए she का pronoun इस्तेमाल किया. Next move to our next example. Ali was a teacher, wasn't he? ये इसका question tag है. अब हम points में देखते हैं कि next बात हमें क्या मद्देनजर रखनी है. The tense of the statement and the tense of its question tag is the same. हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि question tag में statement का tense और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम हो. ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल को देखिए. सारा इज अ नाइस गर्ल, इजंट शी. प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है गर्ल्स इसमें, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है. अली वॉज अ टीचर, wasn't he? Here you used past tense and its question tag is also in past tense. So you should bear this thing in mind that the tense of both the sides should always be the same. ठीक है, बहुत ध्यान से आपको you have to learn, you have to see, you have to check, you have to pay real attention to your statement. Alright, now the third thing that you should remember is only auxiliary verbs are used. Okay, auxiliary verbs are used.
So here you can see that is over here is used as a main verb, but it is also used as an auxiliary, and was is also used over here as a main verb, but we can also use as an auxiliary. So its question tag is Sarah is a nice girl, isn't she? And Ali was a teacher, wasn't he? तो आपने यहाँ पर auxiliary verbs इस्तेमाल करने हैं, main verb इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। अब इसी की मिसाल आप नीचे देख लीजिए, he listens to me, he listens to me। इस स्टेटमेंट में गर्ल्स you do not have any auxiliary, do you see any auxiliary over here? यहाँ पर आपको कोई auxiliary नजर आ रहा है? नहीं है। यहाँ पर मेन वर्ब है जो कि एक्शन वर्ब है, और आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि एक्शन वर्ब्स में जब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो आप उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप अपनी तरफ से यहाँ पर ऑक्सिलरी लेके आते हैं, और वो ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, डू और डज होते हैं, है ना, याद आया आपको। तो इसलिए ही लिसन्स टू मी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टाइप बनेगा डजंट ही, ठीक है। ही की वजह से आपने यहाँ पर डजंट लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? जी, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको जहन में रखना है वो है इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। नाउ लेट्स सी आवर एग्जांपल, ही लिसन्स टू मी, डजंट ही। अब आप देख रही हैं कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है पूरा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन टैग में हम नॉट लगाएंगे, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में देखिए आपने इसी तरह किया है, ऑक्सिलरी प्लस नॉट और फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन की सूरत में होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर। द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर दैट इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव योर क्वेश्चन टैग विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, ठीक है। ये पहले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। जी बच्चों, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू डोंट कॉल मी डू यू, यू डोंट कॉल मी डू यू। अब यहाँ पर आप देख रही हैं कि योर स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव, राइट, योर स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव, सो योर क्वेश्चन टैग वुड बी इन पॉजिटिव। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन टैग फिर पॉजिटिव में बनेगा। ये पहली वाली एग्जाम्पल का बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ पर हमने अभी आपको ये बताया था कि आपका अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, मगर यहाँ पर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है लिहाजा उसका क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। यू डोंट कॉल मी डू यू, ऑलराइट। नाउ जो लास्ट आपका पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है नेगेटिव टैग इज फॉर्म्ड विद द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, ठीक है। जब आप अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगी उस वक्त आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी होती है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स की। अब वो क्या होती हैं? नाउ यू कैन लुक ओवर हियर, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरीज ये इस तरह से इस्तेमाल करनी है आपको। इज नॉट आपका चेंज हो जाएगा isn't, आर नॉट विल बी चेंज इनटू aren't, was not will be changed into wasn't. So you can look all the examples over here, different sorts of auxiliary verbs and how you have contracted them. Same way you have modal auxiliaries, will not will be changed into won't, cannot will be changed into can't, should not will be changed into shouldn't. Alright, समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब ज़रा सा ऊपर अब एग्जाम्पल्स की तरफ हम देखें। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गर्ल्स शुड क्लीन द रूम, गर्ल्स शुड क्लीन द रूम। व्हाट शुड बी क्वेश्चन टैग? नाउ गर्ल्स, यहाँ आप देखिए आपका ऑक्सिलरी शुड है, ठीक है, शुड ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। तो अब आप इसको यहाँ पर कैसे बनाएंगे? शाबाश बताइए। यस,
ठीक है, अब आप मुझे बताइए shouldn't they, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह I cannot run fast, cannot के लिए आप क्या कहेंगी, can I, ठीक है। क्योंकि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बन गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। हमारा ये आज का लेसन था क्वेश्चन टैग्स। और क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, दे आर द शॉर्ट क्वेश्चंस दैट आर पुट एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट फॉर कंफर्मेशन। ऑलराइट, alright girls, now come to page number 46 of your book and we can see that there is exercise A that says complete the following sentences with suitable question tags. The first is the girls speak loudly. Now you see that we have an action verb as our main verb and we do not have any auxiliary over here. So what could be the question tag of it? Think. जी बच्चों, लिखा आपने जी, डोंट दे, ये इसका आंसर है। द गर्ल्स स्पीक लाउडली, डोंट दे। ठीक, अब नेक्स्ट भी इसी तरह से है, ही स्ट्राइव्स हार्ड टू गेट हिज टारगेट, यू हैव टू डू इट द सेम वे। ओके, देन द थर्ड वन इज ही टुक अ चांस। नाउ वी हैव टू डू दिस। कैसे करेंगे आप इसको? आपको कुछ इसमें चेंज नज़र आ रहा है? क्या चेंज है बताइएगा। जी, जो चेंज था वो पास्ट टेंस था। पास्ट टेंस की वजह से आपके पास आपका ऑक्सिलरी भी पास्ट टेंस में आया। ही टुक अ चांस, डिडंट ही। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, यू आर जॉन, यू आर जॉन, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? ठीक है, यू आर जॉन आर्ट यू, बिल्कुल ये इस तरह से बनेगा। अब girls, I hope by now you have understood how to make your question tags and now you have to do all the exercise up to number 15. Okay, and I hope you will not find any difficulty at all. These are very simple, very easy to learn. Now on page number 47 you can see exercise B. It is also very easy. Read the following sentences. If there is any mistake in the question tag, underline it and correct it. क्या करना है आपको? आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और अगर उसमें आपको कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो आपने उसको अंडरलाइन करना है और उसकी करेक्टेड फॉर्म आपने ब्लैंक के अंदर लिखनी है। द लॉयर डिफेंडेड हिज क्लाइंट, डजंट ही। अब मुझे बताइए इसमें क्या मिस्टेक है? द लॉयर डिफेंडेड हिज क्लाइंट, डजंट ही। जी, इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पर पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है और आपका क्वेश्चन टैग इन्होंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है गर्ल्स, यहाँ पर डजंट को आपने अंडरलाइन किया और इसकी करेक्ट टेंस आपने डिडंट में चेंज किया इसको और फिर उसके बाद आपने इसका प्रोनाउन लगाया, क्योंकि ये चीज़ आपने सीखी है ना अभी कि दोनों जानिब टेंस आपका सेम होना चाहिए, क्वेश्चन टैग का भी और उसके स्टेटमेंट का भी। नाउ लेट अस लुक टू द अदर एग्जांपल। ग्रैंडमदर ड्राइज डेट्स एंड ग्रेप्स, डज शी। ग्रैंडमदर ड्राइज डेट्स एंड ग्रेप्स, डज शी। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? आप देखिए, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और उसका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव है, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए रूल्स के तहत, तो ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको किया और आपने इसको नेगेटिव बना दिया और ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपना नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 तक ये अपना काम करना है। तो ये याद कर लीजिए कि आपको पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47 एज एन होमवर्क करना है और इसके साथ साथ आपको कुछ बुक पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी जा रही है, वो भी आपको अटेम्प्ट करनी होगी। जी बेटा, अब आप लोग देख रहे हैं अपनी कॉपी में, आपको इस तरह से क्वेश्चन टैग की ये एक्सरसाइज जो कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये करनी है और ये आपको ऑल टुगेदर 15 सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनके आपको क्वेश्चन टैग्स बनाने हैं। बहुत ही छोटा सा, मामूली सा, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है एंड आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग।
Okay students, this is your homework. You have to do exercise A from page number 46 and exercise B from page number 47 in your book, and you have to do practice exercise in your notebook. Okay students, I hope you have understood it well and you will complete your work without any difficulty and do it yourself. Till we meet again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.